कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। नोट करिए, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक atoms or their compounds act as catalyst. Their compound act as catalyst in various reactions. Due to presence of vacant orbitals. These metals provide active surface to reactant molecules, where these reactants adsorb and convert into product. For example, sulfur dioxide react with oxygen in presence of vanadium pentoxide, then form sulfur trioxide. Oil hydrogenated in presence of nickel catalyst, then convert into fat. N2 plus 3H2 gives ammonia in presence of iron. ठीक है, तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल उनके कंपाउंड्स हैं उनमें क्या होता है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होता है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी का मींस क्या होता है कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। और कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। जब वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो ये क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्टिव सरफेस प्रोवाइड करते हैं। इनकी वैलेंसी फ्री होती है तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिव सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं और इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस यहाँ सरफेस से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। उनके अंदर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है। तो ये हो गया अपने पास कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। नेक्स्ट पॉइंट, color. The compound of transition elements are usually colored both in solid state
and in aqueous solution, and in aqueous solution. In the transition elements which have unpaired electrons, in the transition elements which have unpaired electrons, absorb energy from visible region, absorb energy from, absorb energy, absorb energy from visible region, and excited from, and excited from lower energy T2G orbital to lower energy T2G orbital to higher energy EG orbital, higher energy EG orbitals. This type of transition is called, this type of transition is called DD transition, is called DD transition. This type of transition is called DD transition. When visible light fall on these compounds, when visible light fall on these compounds, they absorb a particular color, they absorb a particular color from the radiation, and the remaining colors are emitted, and the remaining colors are emitted. ठीक है, तो जिस कलर की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है बाकी सबको एमिट कर रहा है, तो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है वो कलर शो कर देगा अपने पास। ठीक, ये अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी अपन कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो सेम एनर्जी डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, विजिबल रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल से हायर एनर्जी EG ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, तो विजिबल रीजन से जिस लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं। ठीक है, या अपन ये कहते हैं कि ये विजिबल रीजन में से एक पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी सबको एमिट कर देते हैं, तो वो जो कलर जो एब्जॉर्ब किया है वही कलर ये शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। Magnetic properties. On the basis of magnetic properties, on the basis of magnetic properties, these substances are classified in, these substances are classified in three types. Three types. First, paramagnetic, paramagnetic. Those substances which have unpaired electron, those substances which have unpaired electron placed in outer magnetic field, placed in outer
magnetic field then behave as magnet and after removing magnetic field its lost magnetic properties called paramagnetic substance paramagnetic substance. We can determine the magnetic moment of substance by following formula. Mu equals to root n multiply n plus 2 where n equals to number of unpaired electrons number of unpaired electrons. ठीक है, तो ये अपन सॉलिड वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि जिन सब्सटेंस के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस्ट कर देता है। ऐसे सब्सटेंस को अपन बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इनका मैग्नेटिक मोमेंट अपन कैलकुलेट करते हैं म्यू इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है Fe+2, तो Fe+2 जो है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या लिखेंगे म्यू इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2। ठीक है, कितना हो गया अपने पास, √24। ठीक है, तो ये अपने पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। सेकंड लिखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। These substance repelled by the magnetic field and do not have any unpaired electrons Magnetic moment of these substance is 0. Third, ferromagnetic substances कहां से आ रहे हो, फेरो FERRO फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। परमिशन ले गए थे हैं? किसी से परमिशन लेके नहीं गए, ये बिना परमिशन लिए कैसे आ गए? नहीं वो तो ठीक है, मेरे को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो तुमको आगे ऑफिस के अंदर बोलना पड़ेगा कि परमिशन लेके जाना चाहिए ना तुम लोगों को, पीछे से कोई आएगा तब परमिशन लेके जाना चाहिए था ना ऑफिस से। कहाँ जाके आए इतना टाइम तक?
चलो लिखो, लिखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, the substances which are strongly attracted by, the substances which are strongly attracted by the, strongly attracted by the magnetic field and show permanent magnetism, and show permanent magnetism, permanent magnetism, even when the magnetic field is removed, even when the magnetic field is removed, are known as ferromagnetic substances, are known as ferromagnetic substances. ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में पढ़ा हुआ है तुम लोगों का, इनमें डोमेन्स होते हैं और डोमेन्स जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए इनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई ट्रांजिशन मेटल्स की। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो पैरा, डाई और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। In transition metal crystals, in transition metal crystals, small atoms like hydrogen, small atoms like hydrogen, oxygen, nitrogen are trapped in, are trapped in interstitial sites, in interstitial sites of metal crystal, interstitial sites of metal crystal. This type of compound called, this type of compound called interstitial compounds, due to presence of these atoms, presence of these atoms, density of interstitial compounds increases, density of interstitial compounds increases। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होता है उनका डेंसिटी इंक्रीज होता है। रीजन, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं इन पे जो है अदर एटम्स या मॉलिक्यूल जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, तो कोई वैकेंट स्पेस नहीं होता है, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट नोट करो, एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन। Due to approximate similar size of, due to approximate similar size of transition metals, transition metals, these elements easily replaced each other, easily replaced each other in their crystal lattice, in their crystal lattice, and form alloys, and form alloys
ठीक है। तो यहाँ पर इनका साइज क्या होता है, सिमिलर साइज है, इसलिए क्रिस्टल एक दूसरे को इजीली रिप्लेस कर देते हैं और एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये अपने पास ट्रांजिशन मेटल्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज हो गई। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी अपने पास? फर्स्ट था रेडियस, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फोर्थ हमने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट, देन कलर, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट जो था उनकी प्रॉपर्टीज हो गई और डी ब्लॉक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को कर देंगे कंप्लीट, यानी कल अपनी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर।